سے اس کو فوری حل کریں، فوری اس میں بیان دے کے کارروائی ہونی چاہیے، ملزمان کو گرفتار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، 5 دن جس طرح شاہ صاحب نے دیے ہیں، ہم اس کی کچھ دور حمایت کرتے ہیں. اس کے بعد انتظامیہ کو بہت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ بات نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چھوٹی سی بات تفصیلاً ہو چکی ہے. جس طرح ستی صاحب نے فرمایا، یہاں ایک بھائی نے پوچھا، تو اس سے تکیے کا جو محل رکوع ہے، اس کا تجربہ ہے، وہ پاکستان اور کشمیر کی LOC پہ ہے. پاکستان کا الحمدللہ ایک ٹائم سے بڑا پرامن یہاں پہ ہمارے حالات جا رہے ہیں. خدا نخواستہ پاکستان کے کونے سے اس طرح کی کوئی آگ وہاں سے شروع ہو جائے، چنگاری شروع ہو جائے اور پورے ملک میں پھیل جائے تو ہمیں اس کا بہت افسوس ہوگا. لہٰذا ہم انتظامیہ کے تمام اعلیٰ افسران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس انتہائی نازک معاملے کو سیریس لیں اور فی الفور اس پہ کارروائی عمل لائی جائے. شکریہ. میرا تعلق جماعت اہل سنت پاکستان تحصیل مری سے کافی دنوں سے ہم بھی جب شادی کے ساتھ جب سے یہ علم ہوا ہے علم شریف کی مقدس ناموں کی توہین کی گئی، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید بہت جلد انتظامیہ کی طرف سے، سیاسی جو لگایا اس کی طرف سے، میں امید لگائے بیٹھا تھا ویسے یہ کہ کم از کم پیپل پارٹی کی طرف سے، کیونکہ جن کا منشور اور جن کی اہل بیت سے محبت کا وہ سلسلہ جھنڈے کے رنگ میں مذاق میں نہیں جانا چاہتا، وہ ساری چیزیں میں دیکھ کے اس میں یہ سوچنے لگا تھا کہ شاید پیپل پارٹی کی طرف سے کوئی بات آئے گی، انتظامیہ کی طرف سے آئے گی، یا ہمارا حلقہ ہے سیاسی بیا باب موجود ہیں دیے ہیں میں نے، اور ہمارے پی صاحب ان سے میری خود بات ہوئی ہے کہ آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فضا جو ہے وہ مجھے بگڑتی نظر آ رہی ہے، قانون تو کے اوپر جوں تک جو ہے نا وہ نہیں رہی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہمارا تعلق جماعت اہل سنت سے ہے، پرامن ہے، لیکن یہ کم از کم اجازت نہیں دے سکتی کسی کو کہ وہ علم پاک کی بے ادبی کرے، مقدس ناموں کی جو ہے وہ بے ادبی کرے. یہ کم از کم کسی طور پہ میں بحیثیت سنی بھی اس چیز کی اجازت قطعاً نہیں دے سکتا. بہرحال میں بھی باقی احباب کی طرح پرامن طریقے سے آج بھی اس پریس کانفرنس میں یہ کہنا چاہتا ہوں انتظامیہ سے اور ذمہ داران افراد جتنے بھی ہیں ان سے کہ پلیز آنکھیں بند کر کے یہ تماشا نہ دیکھیے، بلکہ اس میں اپنا اپنا کردار، اپنا رول جو ہے وہ ادا کیجیے. ورنہ بصورت دیگر جو قبلہ شاہ جی کا حکم ہوگا جو 5 دن کا آپ سن رہے ہیں یا احباب تک یہ خبر پہنچ چکی ہے، اس کے بعد اگر کوئی معاملے ہوئے تو یہ انتظامیہ کے جن جن کے نام آپ سن چکے یا میں لے چکا ہوں، یہ سارے ذمہ دار افراد جو ہیں وہ کسی نقصان کے، جانی نقصان ہو یا املاک کا ہو یا کوئی اور، ویسے ہم کوشش تو ہوتی ہے کہ لیکن جب انسان کے ایمان سے کھیلا جائے، ذات سے ہو تو معاملہ برداشت تک ہو سکتا ہے اور ذاتی طور پہ ہم برداشت کی، لیکن بعض جگہوں پہ بات جب ایمان کی آتی ہے تو پھر خاموش نہیں رہ سکتے. بہرحال میں بھی اپنی طرف سے یہ سارا جیسے اپنے قبلہ شاہ جی سے بھی سنا، دیگر بھائیوں سے، کہ پرامن تھے، پرامن رہنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب مقدسات کی اس طرح توہین کی جائے اور پھر خاموش تماشائی بیٹھ کے سارے ذمہ داران افراد جو ہیں وہ الگ جگہ پہ بیٹھ کے دیکھیں تو یہ ہمیں کم از کم برداشت نہیں ہے. تو پلیز یہ کیجیے کہ انتظامیہ کو ایک دفعہ پھر میں یہ آپ سے ملتمس بھی ہوں، التجا بھی کرتا ہوں کہ اس جو امن ہے اس کو برقرار رہنے دیجیے، ورنہ تمام تر ذمہ داری یہ آپ افراد کے اوپر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے احباب نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے. واقعہ سارا آپ کے سامنے آ چکا ہے. میرا تعلق بھی تحصیل کوٹلی ستیاں سے ہے اور آصف شفیق میں پڑوس میں رہتا ہوں. ہمارا ایک ہی علاقہ ہے. میں نے جب اس واقعے کے بارے میں سنا، تحصیل کوٹلی ستیاں کے
बड़े माज़ज़ीन रूहानी बुज़ुर्ग, सियासी अहबाब जो मसले को हल करने वाले अहबाब थे, उनसे गुजारिश की। हर शख्स उनके पास गया कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन आगे से एक ही जवाब आया कि मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। वो पता नहीं किसकी शाय पे चल रहे हैं। ये इतना हसास मसला है। कोई भी मुसलमान जो कलमा नबी पाक अलैहिस्सलाम का पढ़ता है, वो किसी सूरत भी कलमा शरीफ की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना ही पैतन पाक के नामों की तौहीन बर्दाश्त करता है, और ना ही अलम पाक की तौहीन बर्दाश्त कर सकता है। ये सबको, इंतज़ामिया को भी पता है, अवामन नास को भी पता है, और सारे गांव के लोगों को पता है, और उस इलाके को अच्छी तरह पता है। बहुत सोशल मीडिया पर ये बहस हो चुकी है कि ये वाक़या हुआ है, और ये वाक़या किसकी इमा पर हुआ? ये आसिफ शफीक सती की इमा पर हुआ है। चंद नौजवानों को आगे लगाकर उन्होंने ये घटिया अमल करवाया है। उससे आप जितना भी छुपना चाहें, उससे छुप नहीं सकते हैं। पहले उन्होंने गेम प्लान तैयार की अपनी सियासत चमकाने के लिए कि उसको शिया सुन्नी के सामने लेकर आए। जब वहाँ से नाकाम हुए, कुछ उलमा को साथ लगाया, और उन्होंने भी फ़िरका वारियत को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग, उलमा में भी ऐसे लोग हैं जो फ़िरका वारियत फैलाने के लिए हर वक्त पेश रहते हैं, उन्होंने भी कोशिश की। उसके बाद फिर और इशू लेकर आए, फिर बरादरी का इशू सामने लेकर आए। ये इरम नसीर सती साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं कोटली सतियाँ की आवाम से भी और ज़िला इंतज़ामिया रावलपिंडी से गुजारिश करूँगा, कोटली सतियाँ की आवाम से बिलखुसूस इसलिए गुजारिश करूँगा कि इरम नसीर सती साहब कर्नल नसीर सती साहब के बेटे हैं, और कर्नल नसीर सती साहब जैसा बड़ा सती शायद ही कोटली सतिया में कोई बड़ा सती मौजूद हो। इसलिए नहीं बरादरी अज़म है, ये सारे लोग अहले बैत तहार से मोहब्बत करते हैं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बाबा फिदा शाह जी और बाबा लाल शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, इसलिए वे इन दिलों में इनकी अकीदत और मोहब्बत मौजूद है। इंतज़ामिया एक ही काम करे, जिन शरपसंद अनासर ने ये काम किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करे, ताकि मुल्क का अमन कायम रह सके। हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। शाह साहब ने जो 5 दिन का टाइम दिया है, जब ही वो 5 दिन पूरे होते हैं, अगर इंतज़ामिया कोई अगले ऐसे ही लहतो लाल से काम टाल मटोल से लेती रही, तो जब ऐलान होगा तो फिर हमारे हाथों में ये बात नहीं रहेगी, फिर ये पूरे पाकिस्तान तक बात जाएगी। इसलिए यहाँ इस्लामाबाद के अंदर बैठकर जो वफाकी हुकूमत है, पाकिस्तान के मुक़्तदर अदारे हैं, पंजाब हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो इस मसले को देखें, और ज़िले इंतज़ामिया से गुजारिश है कि फ़ौरन एफआईआर दर्ज करके वो जो मुल्ज़मान हैं उन्हें गिरफ़्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। तमाम मीडिया से गुजारिश करूँगा कि हर सच बात लिखना आपके फेर होना सकेगा। आप सबसे हमारी गुजारिश है कि इस मामले में आप अपना भरपूर तौर पे किरदार अदा करें, और इंतज़ामिया को बार बार बादर करें कि ये मामला इस पूरे मुल्क का अमन का है, और इस अमन की पासदारी करना मेरा और हम सबका भी हक है, आप सबका भी हक है, और जो हुक्मरानी वाले हैं ये उनकी जिम्मेदारी आई होती है कि वो इस अमन को कायम रख सकें, जिसमें इंशाअल्लाह हम उनका भरपूर साथ देंगे। सिर्फ गुजारिश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ की नजर और कम से कम असल मुसलमान को कहने के बाद तक उठाएंगे। आपकी करवाने के साथ साथ मीडिया से गुजारिश है, मीडिया के उन लोगों को गुजारिश हमारी आवाज आपके तबसुम से सुन रही है कि हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज बने, और हक की बात हुक्मरानी वाला तक, इदारों तक और तमाम उलमाए-ए-दीन तक हो जाए, ताकि इस मामले का बेहतर से बेहतर हल निकल सके। बहुत शुक्रिया और सलाम। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि इंतज़ामिया इस मामले को, संगीन मसले को हल नहीं कर रही, और क्यों आप कह रहे हैं कि वो एक तरफा उनकी बात, इसके मज़मरात क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए मुख्तलिफ इशूज पे, और उन इशू को उन्हें आगे लेके चलते हुए सती यूरोप के लिए बड़ी मस्कीनी और असल हमने पहले से कानून के उस पहले से तक रखी, जिसमें बड़ी बात गरीबों और बड़ी बाहसूल आवाम रहती है, बरादरी को मुश्किलें होती है। वो बरादरी के नाम पर आप उनको कुछ भी अगर जिम्मेदारी आए दे दें, सियासी हवाले से उन्हें जिम्मेदारी को बड़ा फैसन पूरा करती है। आपकी तकलीफ है,
हमेशा कोई फेलियर आए कि बरादरी के नाम को इस्तेमाल करके इस सच्ची शोहरत हासिल करना। इंतजामिया के साथ उसने इस मतलब यही खेल खेला, जबकि हम इंतजामिया से मुलाकात नहीं कर रहे थे। डीएसपी ऑफिसर, डीएसपी का होगा, एसएचओ कलर से मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में हमने कोशिश की कि जो जलसा करने जा रहे हैं ये कोई सियासी शिविर ऐसी बात है नहीं, ये भर्ती मैटर है जिसमें हमने इंतजामिया को गुजारिश की कि इनको रोका जाए। उन्होंने आने साल इंतजामिया को धमकी दी कि अगर आपने मुझे रोका तो मैं लाखों की तादाद में लोग आकर थाने का घेराव करूंगा, थाने को जला दूंगा। तो शायद इंतजामिया उनकी गुफ्तगू से कुछ ज्यादा डर गई है, जिसकी वजह से वो इंसाफ का दायरा को हाथ में रखना भूल गई है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आसिफ शफीक, आखिर क्या वजह है कि आसिफ शफीक के साथ इंतजामिया के साथ दे रही है, पीपल्स पार्टी के साथ दे रही है, मुंतखब नुमाइंदे जो हैं आपके MNA MP वो भी उसका साथ दे रहे हैं? इसमें क्या वजह है कि वो आप लोग, क्या आप में बेगम साहब बैठे हैं बहुत पुराने माशाल्लाह पॉलिटिकल वर्कर, और क्या ऐसी कोई सूरत हाल नहीं निकल सकती कि फिरका बंदी से कभी वो आ जाती हैं खबरें हमारे पास, कभी कहा जाती हैं? हम तो ये रोल अदा कर रहा है मीडिया, वहाँ भी नीबा का कालम भी छपा था कि आप इसको फाहम तफहीम से छापें, इसको बैठ के मामला ऐसे तय करें कि टेबल टॉक करें, कुछ लोग डलें बीच में। बेगम साहब ये बेखूबी किरदार अदा कर सकते हैं, साजिद साहब कर सकते हैं। देखिए इसमें बरादरियों से सत्ती बरादरी हो, दूसरी हो, ये तकसीम हो रही है ना। एक दिन हमारे पास खबर आती है, आधे लोग आपकी उसमें कर रहे होते हैं, दूसरे दिन उधर से खबर आती है, आप कर रहे हैं। इसको कोई टेबल टॉक से हल करें, इसको मामला सुलझाएं, इसको बुलचक पैदा करें दोनों तरफ से। मैं हमारे पास का काजी पढ़े तो बाबा लाल बात कर सका आपने मौजूद हूँ। 251 शुरफा को ये मैंने दे चुका हूँ कि अगर आसिफ शफीक झींगे में बैठना चाहे तो मैं हर जगह उनके साथ बैठने के लिए तैयार, जिस पर वो अब तक बाजी थे। इसके साथ साथ इन नसीब सकी साहब और दीगर जो लोग आपके पास और जो स्टेज पर आके तशरीफ फरमाए और वो इलाके की शुरफा और बाजनवाब लोग मौजूद हैं और इनका तस्दीक कर सके, हमने उनको मैंडेट दिया कि इस मामले को पुराने तरीके से बैठ के हल किया जाए। अगर आसिफ शफीक या उनके इमाम की कोताही है तो इस चीज की माजरत करें, सलाही करें। अगर वो इस चीज को जितना बैठ के बातें कर देती कि मैं इस चीज में शामिल नहीं हूँ तो उनकी अगर दिलादारी हुई तो मैं उनसे माजरत कर दूंगा। दूसरी चीज आपने इंतजामिया का सवाल किया कि क्या बात है कि इंतजामिया सुन क्यों गई। इंतजामिया को बड़ा वाज़ेह पहले दिन ये चीज मालूम थी कि वहाँ के हादसा पेश आए, अकरार मोहम्मद की तस्वीर की गई, अलमपाक उतारा गया। अब ये भी बात इंतजामिया जानती थी क्योंकि हर इंतजामिया को अपने इलाके का बाबू पता होता है। तमाम खुफिया इदारों की रिपोर्ट आपके पास मौजूद थी कि ये वाकया भी हुआ है और इस वाकये के पीछे कौन कौन लोग ये उनके था। हमें इस चीज का तकलीफ नहीं कर सका कि अगर इंतजामिया ऐसी कौन सी परेशानी का शिकार है कि कानून तो मुल्क का हर बंदे और हर बचत के लिए है, तो इनके कानून ने क्यों नहीं अब तक इंसाफ किया। तीसरी बात पीपल्स पार्टी में आपने सवाल किया, पीपल्स पार्टी के तमाम जो रहनुमान हमारे उनसे बिल्कुल मुलाकात हुई, हमारे दोस्तों की मुलाकात हुई, हमारे कायम कमेटी के रास्ते उनके साथ हैं, जिससे हमने 12 मतलब उनको ये एहसास दिलाया कि इस जैसे इंतजार पसंद हो कम से कम एक जिम्मेदार पार्टी का नाम अपने साथ लगाते हुए मुनासिब नहीं लगते। अगर आपको लगता है कि आप ये नुमाइंदा जो है ये अपनी बात के बात करना ठीक है तो आप पार्टी के इर्दाद करें, जिला बुलाएं। अगर हम आए तो हम तो बुला लें, अगर हम डायलॉग करने से तस्किया करने से बैठ के मामला को हल करने से इनकार करें तो हम तो बुला लें। पर ऐसा ना हुआ, किसी ने अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझा। रही बात हमारे एमएनए की, तो मैं एमएनए की बिल्कुल के बाद बिल्कुल बाकी बराबर करूंगा कि वो हमेशा इन लोगों की तलाश में रहेंगे जहाँ से उनको इस सच्ची जरूरत हासिल हो जाए। चलिए हम साथी तो मैंने तो जरूर बदल देंगे, आइंदा भी चाहेंगे, हम भी हल्का भी मौजूद है। ये साथी हमें लोग कभी कभी बन जाते हैं, वो हमेशा इस सच्ची जरूरत के हामी रहेंगे कि उनको ऐसे इश्यूज मिले जिनमें वो खामोशी रखकर अपनी सियासत को आगे बढ़ा सके। जबकि एक अच्छा एमएनए हल्के का एक जिम्मेदार एमएनए वो होता है जो तमाम अपने हल्के की आवाम को एक जैसा लेके चले। और इस मामले में सबसे पहला किरदार भी हमारे हल्के के एमएनए की जिम्मेदारी थी जो कि वो पूरी नहीं कर सके। इवन तो उन्होंने रास्ता करना भी मुनासिब नहीं समझा।